Good morning, everyone. Today we will be studying the poem Dover Beach by Matthew Arnold. Talking about the poet, first of all, Matthew Arnold belonged to the Victorian period of English literature. He was very famous English poet and cultural critic who worked as an inspector of schools. He was a profound social critic, noted especially for his classical attacks on the contemporary tastes and manners of the barbarians, that is aristocracy, the Philistines, that is commercial middle class, and the populace. ये जो वर्ड्स हैं बारबेरियंस, फिलिस्टीन्स, मिडिल पॉपुलेस, सॉरी, ये मैथ्यू आर्नोल्ड के खुद के वर्ड्स बनाए गए हैं जो कि एरिस्टोक्रेसी, कमर्शियल मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए बने हैं. His most important critical work is Culture and Anarchy in 1869. ठीक है, तो अब पोएम की बात करते हैं. डोवर बीच बाय मैथ्यू आर्नोल्ड. दिस पोएम डोवर बीच बाय आर्नोल्ड इज़ अ फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग. ये किस फॉर्म में लिखा गया? ड्रामेटिक मोनोलॉग की फॉर्म में लिखा गया. In this poem, Arnold shows his grief and lament for the decline in religious faith of his time, that is mid 1800s. अपने समय में हो रहे धार्मिक पतन के ऊपर कवि अपना रोष एवं दुख व्यक्त करते हुए ये कविता लिखता है. कवि के अनुसार उस समय के समाज ने अपनी सांस्कृतिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक महत्ता खो दी थी, जिससे हर तरफ बस धोखा, अनिश्चितता एवं नाउमीदी का उदय हो गया था. ये जो पोएम है ये 4 स्टैंजाज में लिखी गई है. तो अब पोएम पढ़ते. In the first stanza, the poet says, "The sea is calm tonight, the tide is full, the moon lies fair. Upon the straits, on the French coast, the light gleams and is gone. The cliffs of England stand, glimmering and vast, out in the tranquil bay. Come to the window, sweet is the night air. Only from the long line of spray, where the sea meets the moon-blanched land. Listen, you hear the grating roar of pebbles which the waves draw back and fling at their return up the high strand, begin and cease and then again begin, with tremulous cadence slow, and bring the eternal note of sadness in." In the first stanza, the poet, who itself is the speaker of the poem, जो कवि है वो खुद ही कविता का क्या है? स्पीकर है, वो स्वयं कविता बोल रहे हैं. तो कवि इज स्टेयरिंग एट द फ्रेंच कोस्ट फ्रॉम सम डिस्टेंस ऑन द अदर साइड ऑफ द चैनल. ही सेज दैट द सी इज़ वेरी calm, very peaceful tonight. It is not only not making loud noises as it used to do earlier. The calm and quiet sea is filled with water at the time of high tide, and the moon is shining brightly upon the straits, that is narrow English channel. स्ट्रेट मतलब जल संधि. स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है वो इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी के बीच में जल संधि है. एंड नाउ as the light has gone off, the poet looks towards the English shore. On the English shore, the famous cliffs, that is mountains of Dover, stand still and tall, and their reflections of these mountains are wavering, that is moving in the quiet sea. Now the poet asks his beloved to come to the window and sit with him and enjoy the air blowing sweetly in the night, coming from where the sea meets the moonlit land of France. He asks his beloved to listen to the irritating sound produced by the waves as they draw back and forth pebbles. Pebbles मतलब छोटे छोटे पत्थर जो समुद्री तट पर पाए जाते. The sound of the waves are continuously produced, but now these sounds bring sadness to the poet and make him depressed and melancholic. रात्रि के समय का समुद्र किनारे का मनोहर दृश्य यह कविता प्रस्तुत करती है. कवि समुद्र किनारे बैठे रात में समुद्र को चांद की रोशनी में चमकते हुए देख रहे हैं. ज्वार के समय पूरा समुद्र भरा पड़ा है. डोवर शहर के पहाड़ों की छवि समुद्र में पड़ रही है.
कवि अपनी प्रेमिका को बुलाता है कि खिड़की के पास आकर इस मनभावन दृश्य को देखे, वह मीठी सी हवा जो बह रही है उसका आनंद ले। फिर वह एक ध्वनि की बात करता है जो कि ज़ोर ज़ोर से बार बार आ रही है। यह ध्वनि है समुद्री लहरों के द्वारा समुद्र किनारे पड़े छोटे छोटे पत्थरों को अपने साथ ले जाने व दोबारा ले आने की। बार बार आ रही यह आवाज़ कवि को अब परेशान करती है व दुखी करती है। In the second stanza, the poet says, Sophocles long ago heard it on the Aegean, and it brought into his mind the turbid ebb and flow of human misery. We find also in the sound a thought, hearing it by this distant northern sea. In the second stanza, the poet remembers that long ago, the great Greek thinker and philosopher Sophocles had also heard the same sound sitting on the shore of Aegean Sea. And that sound reminded Sophocles of the human sufferings and pains, like muddy water going in and out. That is, human sufferings has no end. They come and go for a while and come back again. A speaker, the poet, also feels the same feelings as that of Sophocles by sitting on the shore of Northern Sea, Strait of डोवर की जल संधि जो कि इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी के बीच में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब क्या है इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस स्टैंजा में, हियर द पोइट यूजेस सिमिली का प्रयोग करते। सिमिली मैंने पहले भी बताया है क्या है, कंपैरिजन के लिए किया जाता है कविता में, फिगर ऑफ स्पीच है ये। द पोइट यूजेस सिमिली ऑफ एब एंड फ्लो, दैट इज हाई टाइड लो टाइड, टू कंपेयर ह्यूमन सफरिंग्स। जिस प्रकार ज्वार भाटे के समय पानी ऊपर आता है फिर पीछे जाता है, उसी प्रकार जो मानव जीवन में दुख है, मिलानकली, सैडनेस, पेन, सफरिंग, है ना, दुख दर्द, जो भी ये चीज़ें हैं वो उसका कोई अंत नहीं है। वो दोबारा आती हैं फिर चली जाती हैं फिर वापस आती हैं, ज्वार भाटे की तरह। ठीक है, इसको समझाने के लिए कवि जो है यहाँ पे सिमिली का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट मेटाफर का प्रयोग किया गया है। सोफोक्लीज जो कि बहुत बड़े यूनानी दार्शनिक हैं, उनका एग्जाम्पल दिया गया है। As Sophocles observed the same feeling on the Aegean Sea, while which the poet is observing on the North Sea. कवि इस पैराग्राफ में, इस स्टैंजा में कहता है कि सोफोक्लीस जो कि महान यूनानी दार्शनिक हैं, उन्होंने भी एजियन समुद्र का नाम है, एजियन समुद्र किनारे बैठकर इन आवाज़ों को सुनकर, कौन सी आवाज़, जो पहले स्टैंजा में कवि ने बताई, समुद्र के लहरों की आवाज़ जो कि आ रही है, तो अपने साथ जो समुद्री पत्थर है, छोटे छोटे पेबल्स जो होते हैं, उसको लेकर के आ रही है, जा रही है तो उनको वापस लेकर के जा रही है अपने साथ। फिर वो वापस वो पत्थर आते हैं साथ में, तो वो फिर बजते हैं शोर पे। ठीक है, तो वो एक तो लहरों की आवाज़ तो आ ही रही है, साथ में वो पत्थरों के बजने की आवाज़ें आ रही हैं ज़ोर ज़ोर से। तो यही आवाज़ कवि ने सुनी, और इसी आवाज़ को अब सेकेंड स्टैंजा में कवि क्या बोल रहा है कि बहुत पहले प्राचीन समय में सोफोक्लीज ने एजियन समुद्र के किनारे बैठकर यही आवाज़ें सुनी थी, जो कि आज वह नॉर्दर्न सी के किनारे बैठकर सुन रहा है। तो जब सोफोक्लीज ने एजियन समुद्र के किनारे बैठकर इन आवाज़ों को सुना था, तो उसने भी यह महसूस किया था कि यह जो है इन आवाज़ों को सुनकर सोफोक्लीज ने भी यही कहा था कि जिस तरह से ये आवाज़ें आ जा रही हैं, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में दुख पीड़ा ज्वार भाटे के समान आती जाती रहती है। और यही सेम चीज़ क्या कर रहा है कवि भी, जो है वो नॉर्थ सी के किनारे बैठ करके यही सेम फीलिंग इन्हीं आवाज़ों को सुन करके महसूस कर रहा है। तो ये तुलनात्मक बातें इसमें कहता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टैंजा। The sea of faith was once too at the full, and round earth's shore lay like the folds of a bright girdle furled. But now I only hear its melancholy, long withdrawing roar, retreating to the breath of the night wind, down the vast edges drear and naked shingles of the world. In the third stanza, ये एक important stanza है। In the third, आपको explanation के लिए आ सकता है। In the third stanza, the poet gives the importance of faith
विश्वास, बिलीफ, उसकी महत्ता के बारे में ये पूरा स्टैंजा है, कवि ने ये लिखा है. He says that just as now at the time of tide sea water is spread everywhere, in the same way there was a time where human faith, religious faith, that is faith in God, भगवान में विश्वास, covered the entire earth. Faith covered the earth like folding around the well, that is, it was not loose. People had so much faith in God that it made everything easy and solved all their problems. But now that feeling is not there. People have no faith. It is moving away from the society. Faith is moving away from the society, just as this moving water from the shore. And now the poet only hears the sad roar, roar मतलब loud cry of the water moving away, just as the faith is moving away from our society, only leaving behind chill night wind making sounds upon the lonely beach and raw pebbles appearing. As the water moves away, the underlying layer of sea is exposed, which is full of pebbles, etc. In the same way as religious faith is disappearing from the society, the inner hollowness, the inner nakedness of the society is being exposed. Now the main important points of this stanza is faith is personified. आप देख ही रहे हैं, सी ऑफ फेथ एक नया वर्ड भी कॉइन किया गया है जो कि ट्रांसफर्ड एपिथेट भी है. ठीक है, सी ऑफ फेथ ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज़ किया गया है, फेथ को पर्सोनीफाई किया गया है, मानवीकरण किया गया है फेथ का. फिगर ऑफ स्पीच है ये. फिर सिमिली यूज़ की गई है, सिमिली बिटवीन मूविंग वाटर दैट इज रिसीडिंग टाइड एंड डिसअपियरिंग फेथ टू शो हॉलोनेस ऑफ सी एंड सोसाइटी रेस्पेक्टिवली. और अटैक्स दिस स्टैंजा इन थ्रू द स्टैंजा द पोएट अटैक्स ऑन द हॉलोनेस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी और मॉडर्निज्म. जो आधुनिकतावाद है उसके ऊपर कवि प्रहार करता है. इस स्टैंजा के माध्यम से यहाँ कवि फेथ, जो कि विश्वास, ईश्वर में विश्वास, बेसिकली विश्वास कौन सा, ईश्वर में विश्वास, श्रद्धा ना, भक्ति की महत्ता बताता है. जिस प्रकार ज्वार के समय समुद्र भरा पड़ा है पानी से, उसी प्रकार पहले के समय में लोगों में विश्वास हुआ करता था, ईश्वर के प्रति श्रद्धा होती थी, विश्वास होता था और उससे लोग काम करते थे, एक दूसरे के प्रति विश्वास होता था. तो समाज बहुत अच्छा था, उस समय का समाज जो है वो बहुत अच्छा था. कवि क्या कर रहा है, यहाँ कंपैरिजन कर रहा है पहले के समाज में और अब के समाज में, और तुलनात्मक अध्ययन करते हुए पहले के समाज को अच्छा बता रहा है और आज के समाज को वो बिल्कुल खोखला साबित करेगा धीरे धीरे. ठीक है, तो क्या कहता है कि तब समाज, क्योंकि लोगों में बहुत विश्वास था तो समाज बहुत अच्छा था, सब एक होकर के रहते थे, उनके सारे काम पूरे होते थे. किंतु अब आज के समय में आधुनिकता का जो समय चल रहा है, किंतु अब बस कवि को समुद्र के पानी के वापस जाने की आवाज़ आ रही है, जिसकी तुलना वह विश्वास के समाज से खत्म होने से करता है. जिस प्रकार ये जो समुद्र का पानी है, जो लहरें हैं वो वापस जा रही हैं, पीछे हट रही हैं, फिर आगे आ रही हैं और अपने साथ वो पत्थर ला रही हैं, और वो पत्थर तेज़ तेज़ शोर किनारे पे पड़ता है तो वो बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ कर रहा है. तो कवि इसकी तुलना करता है समाज में विश्वास के खत्म होने से, और ये कि भाई जिस प्रकार पानी पीछे जा रहा है उसी प्रकार समाज से विश्वास खत्म हो रहा है. और जब वापस आता है पानी और पत्थरों के पड़ने की आवाज़ आती है किनारे, समुद्री किनारे पे, समुद्री तट पे, तो ये इसकी तुलना किससे करता है, जो विश्वास खत्म हुआ. तो कवि ये कह रहा है कि विश्वास जो खत्म हुआ है तो समाज जो वो चिल्ला रहा है, विश्वास जो है वो चिल्ला रहा है, इतनी दुर्दशा हो चुकी है आज के समाज की. तो ये बिल्कुल लाउड क्राई है, रोरिंग साउंड है. ठीक है, जिस प्रकार समुद्र का पानी वापस जा रहा है तो समुद्र की सतह उजागर होती है और नीचे पड़े पत्थर वगैरह दिखते हैं, वैसे ही विश्वास के समाज से चले जाने से, विश्वास धीरे धीरे, श्रद्धा जो है समाज में होनी चाहिए थी ईश्वर के प्रति, वो ख़त्म हो रही है.
तो समाज की निचली सतह भी उजागर हो रही है। समाज का जो सतह है, जिस सतह मतलब समाज का जो असली रूप है, भगवान में विश्वास ना होने के कारण जो असली रूप होता है किसी भी समाज का, वो उजागर हो रहा है। तो कवि कहता है कि आज के समाज का खोखलापन उजागर हो रहा है। आधुनिक समाज का खोखला अपूर्ण बताते हुए कवि जो है वो आधुनिकतावाद पर प्रहार करता है इस स्टैंजा के माध्यम से। तो ये इम्पॉर्टेंट स्टैंजा है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। तो इसको आप दोबारा अच्छे से इसको पढ़िएगा, बिकॉज दिस कैन कम फॉर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नाउ कमिंग टू द लास्ट स्टैंजा, जो कि हमारा चौथा स्टैंजा है, उसमें कवि कहता है, लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर, फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, सो वेरियस, सो ब्यूटिफुल, सो न्यू, hath really neither joy nor love nor light nor certitude nor peace nor help for pain, and we are here as on a darkling plain, swept with confused alarms of struggle and flight, where ignorant armies clash by नाइट। इस पैराग्राफ इस स्टैंजा की लास्ट की जो 4 लाइन्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दे कैन कम फॉर एक्सप्लेनेशन। In the last stanza, the poet says to his beloved that we should be faithful towards each other. He speaks against modern world and says that this appears to be joyful. This world appears to be joyful, happy, beautiful, but in reality, it has nothing, no joy, no love, no light, no certainty, no peace, or no one help here in pain. He compares this world to a dark place where no one knows what they are doing. People are just living. They all are in great confusion. As soldiers fight with enemies in night, that fight will be useless. In the same way, people here in this world are living uselessly without faith. If in a society people live without faith in God, religious faith, and all these things, then that society would be useless according to the poet. Now, important points in this stanza, poet refers this world to a dark place, that is darkling plain. जो वर्ड का वो प्रयोग करते हैं, डार्कलिंग प्लेन, ये जो आज की दुनिया है, आधुनिक दुनिया है, उसको कवि डार्क प्लेस, काली जगह, बिल्कुल काली जगह कहता है, जहाँ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल घोर घनघोर अंधेरा है, अंधेरी जगह है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पोइट यूजेस सिमिली, सिमिली का प्रयोग करते हुए, एंड ही सेज कि आर्मीज फाइटिंग इन नाइट टू शो द यूजलेसनेस ऑफ पीपल लिविंग विदाउट फेथ हियर, अटैक्स ऑन मोरल करप्शन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। वही चीज़ अगेन, मोरल करप्शन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्निज्म के खिलाफ है ये कविता। तो नैतिक पतन जो है समाज में, क्योंकि विश्वास नहीं रहेगा, श्रद्धा नहीं रहेगी, भगवान पे कोई आस्था नहीं है, तो निश्चित है कि उस समाज का नैतिक पतन होना ही है। तो मोरल करप्शन समाज में है, उसके ऊपर कवि अटैक करता है। ठीक है, तो कवि अपनी प्रेमिका को कहता है कि हमें एक दूसरे के प्रति विश्वास पात्र रहना चाहिए। हालांकि इस समाज में कोई विश्वास नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है, कोई आस्था नहीं है, लेकिन हमें ज़रूर एक दूसरे के प्रति विश्वास रहना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, क्योंकि इस समाज में तो विश्वास है नहीं और दुनिया बिना विश्वास के ढंग से चलती है नहीं। दुनिया जो कि अच्छी खुशहाल दिखती है, यह दुनिया अभी का जो वर्ल्ड है उसके बारे में बात करते हुए कवि कहता है कि बेशक ये दुनिया खुशहाल दिखती है, ऊपर से सब कुछ बहुत हरा भरा खुशहाल अच्छा दिखता है, पर ऐसा वास्तव में है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी, कोई भी खुशी, प्यार, रोशनी, निश्चितता, शांति कुछ नहीं है। यहाँ जब लोगों को विश्वास ही नहीं है तो वो क्या किसी से प्रेम करेंगे, क्या कोई प्रेम की रोशनी होगी, एक दूसरे के मतलब एक दूसरे से स्नेह होगा, है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा, इस समाज में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो सिमिली का प्रयोग करते हुए बताते हैं कि जिस प्रकार सेना घोर अंधेरे में अगर युद्ध लड़े, ठीक है, सेना अगर घोर अंधेरे में युद्ध लड़ेगी तो वह युद्ध व्यर्थ होगा। क्यों? क्योंकि अंधेरे में उसको दुश्मन की पहचान थोड़ी ही होगी, वो बिना वजह लड़ेगी, है ना, बिना दुश्मन को पहचाने लड़ेगी, तो वो व्यर्थहीन युद्ध होगा। तो उसी प्रकार यह दुनिया जो बिना भगवान पर विश्वास के बेवजह चल रही है, वो क्या है? अर्थहीन है। ठीक है, सिमिली इस तरह से यहाँ पे प्रयोग की गई है।
नाउ कंक्लूडिंग पॉइंट्स ऑफ दिस पोएम, आर्नोल्ड जो थे वो आर्डेंट बिलीवर ऑफ क्रिस्टियनिटी थे। जो हमारे कवि हैं मैथ्यू आर्नोल्ड, उनका घोर विश्वास था क्रिश्चियन धर्म के प्रति, भगवान के प्रति, आस्था के प्रति। ठीक है, तो जब मॉडर्न वर्ल्ड की शुरुआत होती है, मॉडर्निज़्म की शुरुआत होती है, तो मॉडर्निज़्म का जो कॉन्सेप्ट ही है वो कहीं ना कहीं एंटी गॉड है। गॉड को क्वेश्चन करना, भगवान को क्वेश्चन करना, उसकी उसका जो अस्तित्व है उसको क्वेश्चन करना कि भाई भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो ये बात जो है वो आर्नोल्ड को बहुत ज़्यादा खटकती थी, बहुत उनको बुरी लगती थी। तो इसी के खिलाफत में उन्होंने ये कविता लिखी है। आर्नोल्ड वॉज एन आर्डेंट बिलीवर ऑफ क्रिस्टियनिटी एंड फेथ एंड रिलीजन, बट इन द मॉडर्न एरा द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन वॉज फॉलिंग अपार्ट. Thus, this poem is written by Arnold to attack on the uselessness of modern world. आधुनिक समाज की व्यर्थहीनता के ऊपर, अर्थहीनता के ऊपर यह कविता लिखी गई है। एंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्निज्म, आधुनिकतावाद का जो सारा कॉन्सेप्ट है उसके खिलाफ यह कविता बात करती है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट. इट इज़ अ बिट टफ पोएम, थोड़ी सी मुश्किल है, सो यू प्लीज़ री रीड इट अगेन. दोबारा से इसको 2-3 बार पढ़िए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं आप उसको प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए ताकि वो आपको याद रहेंगे. ठीक है, तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट. और कुछ क्वेरीज होंगी तो आई एम डेफिनेटली देयर फॉर यू ऑल. थैंक यू.